پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ لکڑہارا ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ لکڑہارے کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لکڑہارے کے بیٹے کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ لکڑہارے نے اسے ایک مدرسے میں بٹھا دیا تھا۔ لڑکا اتنا ذہین تھا کہ وہ ہر امتحان میں اول آتا تھا، لیکن اس لڑکے کا خرچ اٹھانا غریب لکڑہارے کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ایک دن لکڑہارے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی آرزو ہے کہ تم لکھ پڑھ جاؤ، کیونکہ ایک جاہل اور گوار آدمی کی دنیا میں کوئی بھی عزت نہیں کرتا، لیکن تمہاری پڑھائی کے اخراجات پورے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ دل تو نہیں چاہتا، لیکن میں مجبور ہوں، اب تم سکول جانا بند کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ اگر میں سکول نہیں جاؤں گا تو پھر کیا کروں گا؟ بغیر پڑھائی کے نوکری بھی نہیں ملے گی۔ اب تو ایک ہی صورت ہے، یا تو شہر میں جا کر محنت مزدوری کروں یا پھر کسی امیر آدمی کے ہاں جا کر نوکری لگ جاؤں۔ باپ نے کہا کہ محنت مزدوری کرنے میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن کسی کی نوکری اور غلامی کرنا یہ مجھے پسند نہیں۔ لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، تم مجھے ایک کلہاڑا لے دو، میں تمہارے ساتھ جنگل میں جایا کروں گا اور تمہارے ساتھ ہی لکڑیاں کاٹا کروں گا، ہو سکتا ہے اس طرح میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکوں۔ لکڑہارے نے کہا کہ تم اس طرح پڑھائی کیسے کرو گے؟ دن بھر تم لکڑیاں کاٹو گے اور پھر سکول کی پڑھائی کیسے کرو گے؟ لڑکے نے کہا کہ سکول نہ صحیح تو میں رات کے وقت کسی کے پاس جا کر سبق لے لیا کروں گا۔ لکڑہارے کو بیٹے کی یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک کلہاڑا لے دیا اور پھر دونوں باپ بیٹا دن بھر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے اور شام کو بازار میں لے جا کر بیچتے، اور اس طرح گھر کے خرچے سے جو پیسے بچتے وہ لڑکے کی تعلیم پر لگ جاتے۔ لڑکے کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق تھا، چاہے وہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا لیکن پھر بھی رات کو دیر تک پڑھتا رہتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک روز دونوں باپ بیٹا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ جب لکڑیاں کاٹتے کاٹتے لکڑہارا تھک گیا تو وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور لڑکا ادھر ادھر ٹہلنے کے لیے نکل گیا۔ ایک جگہ سرخ جھاڑیوں میں کچھ پکے پھل لگے ہوئے تھے۔ لڑکا وہ پھل توڑ کر کھانے لگا۔ اچانک اسے آواز آئی، مجھے نکالو، ارے مجھے نکالو۔ لڑکا یہ سن کر حیران رہ گیا اور ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ تھوڑا آگے گیا تو اسے پھر سے وہی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ لڑکا ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ وہ چلتے چلتے ایک بڑے سے درخت کے قریب پہنچ گیا تو پھر وہی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ لڑکا خوف زدہ بھی تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا۔ دراصل وہ آواز اس درخت کے اندر سے آ رہی تھی۔ بہرحال لڑکے نے کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کے تنے پر مارنے لگا۔ جب تھوڑا سا درخت کٹ گیا تو اندر اسے ایک سوراخ دکھائی دیا۔ لڑکا کسی سانپ یا بچھو کے ڈر سے اس سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا۔ پھر لڑکے کو وہی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے باہر نکالو۔ لڑکے نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر ڈالا تو اس کے ہاتھ ایک بوتل آئی۔ اس نے بوتل باہر نکال لی۔ اس بوتل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا اور بوتل کا منہ بند تھا۔ لڑکے نے چاقو کے ساتھ اس بوتل کے ڈھکن کو کھولا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ کپڑا دھواں بن کر فضا میں اڑ گیا اور اس کے سامنے ایک جن نمودار ہوا۔ لڑکا حیران اور پریشان ہو کر یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ جن بولا، بس اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر لڑکے نے ہمت کر کے جواب دیا، کیا تم نیکی کا مجھے یہی بدلہ دو گے؟ جن غصے میں بولا کہ میں کسی نیکی کو نہیں جانتا، لیکن ہاں تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ پھر لڑکا بولا کہ کیسی سزا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جن بولا، تمہیں آواز لگاتے لگاتے میرا گلا بیٹھ گیا، تم نے مجھے نکالنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ پھر لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے تو تمہاری کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن ہاں مجھے 2-4 بار یہ سنا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ پھر جن بولا، وہ میں ہی تھا اور میں اس بوتل کے اندر بند تھا۔ پھر لڑکا بولا، لگتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، بھلا کون اس بات کو مانے گا کہ تم اتنے بڑے اتنی چھوٹی سی بوتل میں بند تھے؟ جن بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ پھر طالب علم بولا کہ ہاں تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پھر جن بولا کہ اگر میں دوبارہ اس بوتل کے اندر چلا جاؤں تو پھر کیا تم مانو گے؟ لڑکے نے کہا کہ ہاں پھر میں مان لوں گا کہ وہ تم ہی تھے۔ لڑکے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن دوبارہ اس بوتل کے اندر چلا گیا۔ لڑکے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ پھر جن بولا کہ تم نے بوتل کا منہ بند کیوں کر دیا؟ لڑکا بولا کہ جو نیکی کا بدلہ بدی سے دے اس کے یہی سزا ہے۔ پھر جن نے کہا کہ میں تو کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو جن ہوں۔ پھر لڑکے نے کہا کہ یہ تو اس سے بھی بری بات ہوئی۔ جن نے پوچھا وہ کیوں؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے
कि अगर कोई इंसान किसी जिन पर एहसान करे तो वो जिन उम्र भर उस आदमी का एहसानमंद रहता है और फिर उम्र भर उसके हर काम में उसकी मदद करता है। मैंने तुम्हें कैद से निजात दिलाई, लेकिन तुम ही मुझे सजा देने पर आमादा हो गए। तुम्हारी कौम के जब दूसरे जिन तुम्हारी ये बात सुनेंगे तो वो शायद तुमसे नफरत करने लगेंगे और तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। जिन ने जब ये सुना तो जिन बोला कि वाकई ही मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मुझे दोबारा आजाद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और हर काम में तुम्हारी मदद करता रहूंगा। लड़के ने जवाब दिया कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो काम किसी के एहसान जताने के लिए किया जाए अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें छोड़ तो दूं, लेकिन तुम्हारी बात पर एतबार कौन करेगा? क्या पता कि तुम मुझे फिर मारने पर उतर जाए। जिन ने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर लड़का बोला कि देखो, तुमने अल्लाह की कसम उठाई है और मैंने पढ़ा है कि जो अल्लाह की कसम उठाता है और उसे झूठा कर देता है तो अल्लाह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर, मेरी जिंदगी और मेरी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। लड़के ने ये कहा और उस बोतल का ढक्कन खोल दिया। देखते ही देखते वो जिन धुआं बनकर फजा में फैल गया और जिन बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन वो लड़का अपना कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर उस तरफ चलने लगा जिस तरफ उसका बाप दरख्त के नीचे सोया हुआ था। जिन बोला, जरा ठहरो तो सही, अब तुम किधर जा रहे हो? फिर लड़का बोला कि क्यों, क्या तुम्हारी नियत में फिर से फतूर आ गया? फिर जिन बोला, अरे नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम भी अजीब आदमी हो कि सुनते ही नहीं। लड़का बोला कि तुम्हारी सुने कौन, तुम तो घड़ी में तोला घड़ी में माशा हो। खैर, अब कहो क्या कहना चाहते हो? जिन ने पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करने के लिए आए थे? फिर लड़के ने बताया कि मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा बाप मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता, तो इसीलिए मैं अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आ जाता हूँ। फिर जिन ने पूछा, तो क्या तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है? लड़के ने बताया कि हाँ, अब मैं मदरसे तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ और फिर रात का उस्ताद के पास जाकर सबक लेता हूँ। जिन ने कहा कि आफरीन है तुम्हारी मेहनत पर, लेकिन अब बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़का बोला कि तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, मेरा बाप मेरी इंतजार देख रहा होगा। जिन ने कहा, लगता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। जिन ने कहा, क्या ही अच्छा हो कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। लड़के ने भी हंसकर जवाब दिया, अरे क्या पता कि ये दोस्ती मेरे लिए एक दिन महंगी पड़ जाए। जिन ने कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और अल्लाह ने चाहा तो मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये लो, ये लोहे का एक छल्ला है, इसे उंगली में पहन लो। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इस छल्ले को किसी चीज से घसा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर उस जिन ने अपनी उंगली से छल्ला निकालकर उस लड़के की उंगली में पहना दिया। जब लड़का वहाँ से जाने लगा तो जिन ने कहा कि भाई अजीब आदमी हो तुम, अब तो हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन तुम अपना नाम बताए बगैर यहाँ से जा रहे हो, अपना नाम तो बताते जाओ। लड़के ने कहा कि मेरा नाम जाकिर है और तुम्हारा नाम क्या है? जिन ने बताया कि मेरा नाम खातिम है। लड़का हंसकर बोला कि तुम फिर से मजाक करने लगे। जिन ने कहा, अरे नहीं भाई, मेरा वाकई नाम खातिम है। दोनों ये कहकर अपनी अपनी राहों पर चल दिए। जब लड़का वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर उसका बाप सो रहा था तो बाप को बहुत ही फिक्रमंद पाया। बाप ने गुस्से में पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? फिर लड़के ने उस जिन का सारा किस्सा अपने बाप को सुनाया। बाप ने सुनकर कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, जिनकी दोस्ती तुम पर बहुत महंगी पड़ेगी। ये कौम किसी का भला नहीं करती, ये उसी वक्त काम आते हैं जब इन पर कोई मुसीबत पड़ी हो। मेरी मानो तो ये छल्ला भी तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसे फेंक दो। लड़के ने कहा कि ये छल्ला फेंकने से क्या होगा? अगर उसके दिल में कोई बुराई होगी तो क्या ये छल्ला फेंकने से उसे कोई रोक सकेगा? फिर इसी तरह दोनों बाप बेटा बातें करते करते शहर पहुंच चुके थे और ऐसे ही बहुत अरसा गुजर गया था, यहाँ तक कि वो लड़का उस जिन को भूल गया था। उसका बाप अब काफी दिन से बीमार था, इसलिए वो लड़का अकेला ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और बाजार में ले जाकर बेच देता। थोड़े बहुत जो पैसे वो कमाता था वो घर के खर्च और बाप के इलाज पर उड़ जाते थे और बगैर पैसे के कौन किसी को पढ़ाता था। और ये वो जमाना था जब तालीम का चर्चा लोगों में बहुत कम था। 100 में से मुश्किल से 10 लड़के पढ़ते थे और वो जो पढ़ते थे वो अच्छे रुतबे पर पहुंच जाते थे। और उस जाकिर को भी यही शौक था कि वो भी पढ़ लिख कर सुकून की जिंदगी गुजारे, लेकिन ये बात उसकी किस्मत में मालूम ना होती थी। और जाकिर वो लड़का था जो ना तो किस्मत का शिकवा खुदा से करता था और ना जमाने का लोगों से। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे कि एक अमीर आदमी का नौकर जाकिर के पास आया और कहने लगा
کہ میاں जाकर तुम हमारे मालिक को तो जानते ही होगे कि वो कितने बड़े रईस हैं। उन्हें अपने काम काज की देखभाल के लिए किसी पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है। तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और 2 वक्त की रोटी भी। अगर काम करना हो तो मेरे साथ चलो। जाकर ने पूछा, क्या दिन को ही काम करना होगा या रात को भी? उस अमीर आदमी के नौकर ने जवाब दिया कि भाई, जब मालिक को खुश करना हो तो दिन और रात नहीं देखा जाता। जाकिर ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे बाप की तबीयत खराब है, इसलिए दिन में 1-2 बार मुझे उसकी देखभाल करने के लिए भी आना होगा, और रात के वक्त तो मैं किसी भी सूरत उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नौकर ने जवाब दिया कि मियाँ जाकिर, जो आदमी तनख्वाह देगा वो काम भी अपनी मर्जी का लेगा। जाकिर ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। फिर नौकर बोला, तुम चलो तो सही, मालिक से बात कर लेना। जाकिर ये सुनकर उसके साथ हो लिया। जब जाकिर उस अमीर आदमी के घर में पहुँचा तो उसने देखा कि एक आदमी को रस्सियों के साथ एक दरख्त से बांधा गया है और वही अमीर आदमी उसे कोड़े के साथ मार रहा है। जाकिर को उसकी हालत पर रहम आ गया और अदब के साथ उस अमीर आदमी से कहा, जनाब, इस आदमी के हाल पर रहम कीजिए, देखिए इसके जिस्म से खून भी फूट फूट कर निकल रहा है। अमीर आदमी ने गुस्से से जाकिर की तरफ देखा और पूछा कि तुम कौन हो? नौकर हाथ जोड़कर बोला कि हुजूर, ये वही आदमी है जिसे बुलाने के लिए हुजूर ने मुझे भेजा था। अमीर आदमी ने गुस्से से जाकिर की तरफ देखा और कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने गुस्ताख हो। खैर, अब तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भी मिलेगी। जरा सब्र करो, पहले इस आदमी की मुरम्मत कर लूं, फिर तुम्हें भी दुरुस्त करता हूँ। ये कहकर उस अमीर आदमी ने उस बंधे हुए आदमी को मारने के लिए कोड़ा उठाया तो जाकिर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो कोड़ा छीन लिया और कहा कि खुदा का खौफ कीजिए और याद रखिए कि मजलूमों की फरियाद से फरिश्ते भी कांप जाते हैं। ये सुनते ही उस अमीर आदमी ने गुस्से में आकर एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। और फिर अमीर आदमी बोला कि हरामजादे, तू यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है या तेरी शामत यहाँ खींच लाई है? जाकिर ने जवाब दिया कि जनाब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, मैं आप जैसे जालिम आदमी की नौकरी करने से भूखा मरना पसंद करूँगा। मालूम होता है कि आपकी दौलत ने आपका मजाज खराब कर दिया है। आपने मुझे बिला वजह मारा और मुझे गालियाँ भी दी, इसलिए कि मैं गरीब हूँ। खैर, मेरी फरियाद तो खुदा से है और याद रखिए कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती और आप लोगों पर जुल्म करते हैं। लेकिन वो अमीर आदमी जो दौलत के लालच में अपनी औकात को भूला हुआ था, उसने नौकरों को गुस्से में हुक्म दिया कि जाकिर को एक दरख्त के साथ उल्टा लटका दें और 8 दिन तक इसे खाने के लिए कुछ न दें। अमीर आदमी के नौकरों ने आगे बढ़कर जाकिर को पकड़ लिया और उसी के पकड़े के कपड़े के साथ उसे बांध दिया और उसे एक दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया। इधर अमीर आदमी ने कोड़ा उठाया और इस गुस्से के साथ 2-3 उसे मारे कि जहाँ पर भी कोड़ा लगा वहीं से खून निकलने लगा। अब इत्तेफाक की बात ये हुई कि एक कोड़ा जाकिर के उस हाथ पर पड़ा जिसमें वो जिन का छल्ला था। कोड़ा लगने से छल्ले पर जो रगड़ हुई तो वही जिन पलक झपकते ही सामने आकर खड़ा हो गया। जिन को इस तरह से सामने देखकर वो अमीर आदमी और उसके नौकर हैरान होकर रह गए। जिन ने जाकिर से मुखातिब होकर कहा कि मियाँ जाकिर, अच्छे दोस्तों, कि इतने दिनों तक तुमने मुझे याद ही नहीं किया और ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? इससे पहले कि जाकिर कुछ कहता, वो अमीर आदमी उसने कोड़ा उठाया और जिन से कहने लगा, अरे तू पीछे हट वरना तुझे भी उल्टा लटकवा दूंगा। आया बड़ा हिमायती। जिन ने यह सुनकर उसे कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहा। फिर जाकिर से मुखातिब होकर बोला कि हुजूर बताइए क्या हुक्म है? जाकिर ने कहा कि तुम देख रहे हो और फिर भी हुक्म का पूछते हो। जिन ने आगे बढ़कर वो रस्सी जिससे जाकिर उल्टा लटक रहा था वो एक झटके में तोड़ डाली और जाकिर को अपनी गोद में लेकर आराम से जमीन पर बिठाया और उसकी मशकें खोल दी। इधर वो अमीर आदमी और नौकर चाकर हैरान होकर ये सब कुछ देख रहे थे। ये देखकर नौकर तो कुछ डर गए थे, लेकिन वो अमीर आदमी और भी गुस्सा हो रहा था। पकड़ लो इन दोनों को और इनकी मशकें बांध दो। लेकिन नौकरों ने जो कुछ भी देखा था, अब इतनी हिम्मत और जुर्रत कहाँ से लाते। जाकिर ने जिन से कहा कि भाई खादिम, वो देखो एक और आदमी भी तो बेचारा बंधा हुआ पड़ा है, उसकी भी मुश्किल हल करो। जिन ने फौरन आगे बढ़कर उस आदमी के हाथ खोल दिए जिसे अभी अभी मार पड़ रही थी। जाकिर ने उस आदमी से पूछा, क्यों मियाँ, तुमसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो तुम्हें ये सजा मिल रही थी? उस आदमी ने बताया कि भाई, मैं इस जालिम आदमी का नौकर हूँ। ये सो रहे थे और मैं ऊपर से पंखा झोल रहा था कि बैठे बैठे मुझे भी ऊँग आ गई। बस मुझे इस बात की सजा मिल रही है। जाकिर ने उस अमीर आदमी से मुखातिब होकर कहा, फरमाइए जनाब, अब आपकी क्या सलाह है? मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें भी इस कोड़े की मार चखानी चाहिए। ये सुनकर उस अमीर आदमी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया और हाथ बढ़ाकर अपनी कमर से खंजर निकाल लिया
वो मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि जिन ने आगे बढ़कर वो खंजर हाथ से छीन लिया और जाकिर से कहा कि मियाँ जाकिर, मुझे लगता है इस आदमी को कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, बताइए क्या हुक्म है। जाकिर ने कहा कि मेरे ख्याल से तो इस आदमी की सजा इतनी ही काफी है कि इसके नौकरों के सामने जो इसकी हालत हुई है, अगर ये गैरतमंद है तो अपनी गैरत से डूब मरे। चलो अब अपने घर चलते हैं। ये कहकर दोनों वहाँ से अपने घर आ गए। घर आकर जाकिर ने कहा कि भाई खादिम, माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अगर उस वक्त तुम नहीं आते तो शायद इस वक्त तक मेरी खाल उधर चुकी होती। ये सुनकर जिन ने कहा कि खैर तुम ये बताओ कि इतने दिनों तक तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया और तुम्हारे ऊपर ये नौबत कैसे आई। फिर जाकिर ने मुस्कुराकर बताया कि भाई मेरे बाप ने मुझे मना किया था और कहा था कि तुम लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं, और आज भी इस बात को इत्तेफाक ही जानो कि उस जालिम आदमी का कोड़ा इस छल्ले पर पड़ा और तुम आ गए। जिन ये सुनकर बोला, वरना तुम मुझे कभी भी याद नहीं करते, ऐसा ही है ना। जाकिर ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ भाई ऐसा ही है। फिर जिन बोला, खैर बताओ अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूँ। आज तो मैं जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर नहीं लाया। जिन ने पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है। फिर जाकिर जिन को अपने बाप के पास ले आया। बूढ़ा लकड़हारा बीमार बिस्तर पर पड़ा था। जाकिर ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, ये मेरा दोस्त खादिम है। लकड़हारे ने पूछा कि कौन खादिम। फिर जाकिर ने बताया कि ये वही जिन है जिसने मुझे छल्ला दिया था। फिर जाकिर ने आज का वाकया भी अपने बाप को कह सुनाया। उसका बाप कहने लगा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन असल बात वही है जो मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये कौम कभी किसी से वफा नहीं करती। ये सुनकर जिन मुस्कुराकर बोला कि बड़े मियाँ, तुम भी ठीक कहते हो कि आग और खाक का क्या मेल जोल, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आखिर दोस्ती भी तो किसी चीज का नाम है। दोस्ती हर कौम और हर मजहब में एक पाक चीज समझी जाती है। मैं जाकिर को कौल दे चुका हूँ कि मैं मरते दम तक अपनी दोस्ती का हक अदा करूँगा। यह सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बोला कि मियाँ फिर मेरा भी कुछ करो, मैं भी कब से चारपाई पर बीमार पड़ा हूँ। यह सुनकर खादिम ने अपने बगल के साथ बंधी हुई एक पतली सी लकड़ी निकाली और उस बूढ़े लकड़हारे के बदन के साथ लगाकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से और इसकी तासीर से तो ठीक हो जा। इतना कहते ही वो लकड़हारा ठीक होकर चारपाई पर बैठ गया और तंदुरुस्त नजर आने लगा, गोया कि वो कभी बीमार हुआ ही नहीं था। खादिम ने वो लकड़ी जाकिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, ये हर बीमारी के लिए शफा है। इसे जिस भी जख्म पर लगाओगे वो ठीक हो जाएगा। हड्डी टूटी हो तो वो जुड़ जाएगी। सांप और बिच्छू के काटने का भी असर नहीं होगा, जहर भी असर नहीं करेगा। अगर पानी ना मिले और प्यास लगी हो तो इसे हल्का सा चूस लो तो यूँ मालूम होगा जैसे सर्द और ठंडा मीठा पानी हलक से नीचे उतर रहा है। जाकिर ने खादिम का शुक्रिया अदा करते हुए वो लकड़ी उससे ले ली। फिर खादिम ने जाकिर से कहा कि भाई अब तुम ऐसा करो कि बादशाह के पास चले जाओ, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो चुका है। जाकिर ने हंसकर पूछा, तो क्या अब वो मुझे अपना वजीर बना लेगा? खादिम ने मुस्कुराकर कहा कि बेशक, तुम जरूर इस मुल्क के अब वजीर बनोगे। आखिर तुम्हारा पढ़ने लिखने से मतलब क्या था, यही ना कि तुम इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर करो। जाकिर ने जवाब दिया कि भाई मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं, मुझसे भी अच्छे पढ़े लिखे हजारों लोग हैं, आखिर मुझे कौन पूछेगा। खादिम ने कहा कि कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम सीधे बादशाह के पास जाना। बादशाह के पास और भी आदमी होंगे, जो भी बादशाह के 3 सवालों का जवाब दे देगा। बादशाह की एक बेटी है और जो उसे भी ठीक कर देगा वो उसे ही अपना वजीर बना लेगा। बादशाह पहला सवाल ये करेगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को जरूरत है। इसका जवाब है पैसा। और दूसरा सवाल ये करेगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर वक्त हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसका जवाब है जमीन। तीसरा सवाल बादशाह ये पूछेगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसके होते हुए इंसान को किसी चीज की हाजत नहीं रहती। इसका जवाब है अकल। इन बातों को याद रखना। उसके बाद बादशाह तुम्हें अपनी बेटी के पास ले जाएगा। उसकी बेटी के सर में एक मुद्दत से सर में दर्द रहता है, बड़े बड़े हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सके। तुम शहजादी को देखभाल कर कहना कि कुछ सोच कर इसका इलाज बताऊंगा। ये कहकर अपने डेरे पर वापस आना और थोड़ी सी राख लेकर इस लकड़ी के साथ 3 बार घिसा देना और थोड़ी सी दवा बना लेना। और फिर ये दवा तुम बादशाह के पास ले जाकर कहना कि शहजादी इस दवा को बतौर नस्वार इस्तेमाल करे। खुदा ने चाहा तो शहजादी का सर का दर्द जाता रहेगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी शादी भी उसी शहजादी से हो जाएगी। और अब मुझे जाने की इजाजत दो। खादिम तो जाकर से इजाजत लेकर चला गया और जाकर सफर की तैयारी करने लगा। जब बाप बाहर से आया तो जाकर से पूछा कि ये सामान कैसा बांध रहे हो।
जाकिर ने सारी बात जो जिन ने कही थी वो अपने बाप को सुना दी। बाप कहने लगा कि ताज्जुब की बात है कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे ऐसा मजाक किया है कि तुमने उसे सही समझ लिया और सफर की तैयारी करने लगे। जाकिर ने कहा कि नहीं, मजाक कैसा, खादिम ऐसा आदमी नहीं है। आप तो खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं कि उसने पलक झपकते ही आपको तंदुरुस्त कर दिया, लेकिन फिर भी आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। बहरहाल अगर उसने मजाक भी किया है तो मैं 2-4 दिन घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। बाप ने जवाब दिया कि अगर तुम सफर पर जा रहे हो तो तुम्हारे पास सफर के लिए खर्च कहाँ से आएगा। बाप फिर बोला, अगर तुम्हें अपने दोस्त पर इतना ही भरोसा है तो उसे एक बार फिर बुलाओ और उसे कहो कि सफर के लिए खर्च का इंतजाम भी कर दे। जाकिर सर हिलाकर बोला कि नहीं, यह मुनासिब नहीं कि मैं जरा सी बात पर उसे तकलीफ दूं। ये तो दोस्ती नहीं, ये तो व्यापार हुआ। कुछ देर तो बाप बेटे में यूं ही बातें होती रही और फिर जाकिर अपना सफर का सामान उठाकर सफर पर चल पड़ा। चलते चलते जब वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा तो इधर उधर मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेता और इसी तरह 2-4 रोज के बाद वो उस शहर में जा पहुंचा जहां बादशाह रहता था और एक सराय में डेरा जमा लिया। जिस दिन उसने दरबार में जाना था वो नहा धोकर तैयार हो गया और नए कपड़े पहनकर दरबार में पहुंच गया। जब बादशाह महल से निकलकर दरबार में आया तो सब लोग अदब के साथ खड़े हो गए। आखिर बादशाह उम्मीदवारों से मुखातिब हुआ, जो भी मेरे 3 सवालों का जवाब देगा वही वजीर बनेगा। बताओ, दुनिया में वो कौन सी चीज है जिससे एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी जरूरत रहती है। एक अमीर आदमी जिसका लिबास भी बहुत कीमती था वो उठा और अदब के साथ बादशाह के सामने झुककर कहने लगा कि बादशाह सलामत, सांस एक ऐसी चीज है जिसकी एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी जरूरत है। अब बादशाह ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। शक्ल सूरत से वो आदमी कोई बड़ा आलिम मालूम होता था। उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, रोटी एक ऐसी चीज है जिसे गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी जरूरत है। फिर बादशाह ने तीसरे आदमी की तरफ देखा। ये आदमी कोई पहलवान मालूम होता था। उसने सर झुकाकर कहा कि बादशाह सलामत, ताकत एक ऐसी चीज है जिसकी गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी जरूरत है। इसी तरह बादशाह ने सबकी तरफ देखा और सबसे सवाल किया, लेकिन बादशाह को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। इसी तरह जब बादशाह की नजर जाकिर पर पड़ी तो ताज्जुब के साथ उससे मुखातिब होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम इन लोगों में क्यों खड़े हो। जाकिर ने अदब के साथ झुककर कहा कि जहाँ पना, मैं भी इस सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, तो बताओ वो कौन सी चीज है जिसकी एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को जरूरत है। यह सुनकर जाकिर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी गरीब आदमी से लेकर बादशाह को भी जरूरत रहती है। बादशाह यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शाबाश, तुमने ठीक जवाब दिया है। अब बादशाह ने वजारत के उम्मीदवारों से दूसरा सवाल पूछा, बताओ कि वो कौन सी चीज है जो दिन रात हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। एक आदमी ने कहा कि जहाँ पना, वो चीज दिल है जो दिन रात हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। दूसरे आदमी ने कहा कि जहाँ पना, वो चीज हवा है, वो हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह सब आदमियों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। फिर बादशाह ने जाकिर की तरफ देखा। जाकिर ने अदब के साथ झुककर कहा कि बादशाह सलामत, वो चीज जमीन है जो दिन रात हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। बादशाह ने खुश होकर कहा, आफरीन है तुम्हारी अकल पर। जाकिर ने झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। फिर बादशाह ने तीसरा सवाल पूछा, बताओ वो कौन सी चीज है जिसके होते हुए इंसान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। पहले उम्मीदवार ने जवाब दिया कि जहाँ पना, सेहत एक ऐसी चीज है जिसके होते हुए इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। फिर बादशाह ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। उसने जवाब दिया, जहाँ पना, मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जिसके बाद इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। बादशाह को इसका जवाब भी पसंद नहीं आया। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार की तरफ देखा तो उसने जवाब दिया कि जहाँ पना, हौसला एक ऐसी चीज है कि जिसके होते हुए इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। लेकिन बादशाह को यह जवाब भी पसंद नहीं आया और इसी तरह उम्मीदवारों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन बादशाह को किसी का जवाब पसंद न आया। फिर बादशाह ने जाकिर की तरफ देखा। जाकिर ने हाथ जोड़कर अदब के साथ कहा कि बादशाह सलामत, अकल एक ऐसी चीज है कि जिसके होते हुए इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। ये जवाब सुनकर सब लोगों के मुंह से आफरीन निकला और बादशाह भी ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी वक्त जाकिर को अपना वजीर बना लिया। दरबार के बाद जब बादशाह के साथ जाकिर महल में गया तो बादशाह ने कहा कि मेरी एक ही बेटी है
पर वो अकेली ही मेरी सल्तनत की वारिस है, लेकिन एक मुद्दत से उसके सर का दर्द नहीं जाता। तुमने जिस समझदारी के साथ मेरे सवालों का जवाब दिया है, मुझे यकीन है कि अगर तुम कोशिश करो तो वो ठीक हो सकती है, और मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूं जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना हो। जाकर ने कहा कि जहाँ पना, मैं तो एक अदना सा गुलाम हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती तो खुदा के हाथ में है, लेकिन अगर मैं शहजादी को एक बार देख लूं तो शायद कुछ खिदमत कर सकूं। बादशाह जाकर को शहजादी के कमरे में ले गया। जाकर ने देखा कि एक बहुत ही हसीन शहजादी बिस्तर पर मुंह ढांपे लेटी हुई है। फिर जाकर ने जिन की बताई हुई सारी बातों पर अमल किया और वही दवा बनाकर लाकर बादशाह को दे दी और कहा कि बादशाह सलामत, अगर ये दवा शहजादी नस्वार के तौर पर इस्तेमाल करे तो ये ठीक हो जाएंगी। फिर शहजादी ने वही अमल किया और कुछ ही दिनों में शहजादी तंदुरुस्त हो गई। जब बादशाह को इस बात की खबर मिली तो बादशाह बहुत खुश हुआ और बादशाह ने खुशी खुशी ये ऐलान कर दिया कि वो जाकर को अपना दामाद बनाता है। और फिर इस तरह शहजादी के साथ जाकर की शादी हो गई और फिर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।